Hello students, you are welcome again at our YouTube channel. Friends, today we are going to learn about quantifiers determinants, and to know about the quantifiers determinants we have to go through a very simple definition about it. Friends, now we will learn what are quantifiers determinants. Listen, quantifiers determinants are the words that are used before a noun to show its quantity of noun, to show its quantity in number or in amount. Clear? What are the quantifiers words? The words that are used before a noun to show nouns quantity in number और in amount. क्या बताया कि जो क्वांटिफायर डिटरमिनर्स हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और उस नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, या तो नंबर में, संख्या में, या फिर किस में, अमाउंट में, मात्रा में. क्लियर? वी हैव टू टेक हियर टू एग्जांपल्स टू क्लियर दैट definition. To show quantity in number or in amount. Example number first, he has few pens. Students, here the word few is quantifier determiner, and the quantifier determiner that is used to show only number, quantity in only number, because pens countable noun and there is not pen, there is pens. Okay, that is plural countable noun. Clear? Few, a few, the few are used with plural countable noun to show the quantity of something, of a thing only in number. Clear? जो few है इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और उस नाउन की नंबर को बताने के लिए और उस नाउन की क्वांटिटी को बताने के लिए, लेकिन किसके अंदर, नंबर के अंदर. इसके लिए few का हमने यूज यहाँ पर किया. तो हमने यही तो पढ़ा कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं few, a few, the few, some, much, many, ये सारे क्या हैं, क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स हैं और इनका यूज एक नाउन से पहले उसकी क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है. अब कुछ एक का नंबर बताने के लिए क्वांटिटी, लेकिन किसके अंदर, नंबर में बताने के लिए और क्वांटिटी, और कुछ एक का क्वांटिटी अमाउंट में बताने के लिए किया जाता है. क्लियर? तो यहाँ पर फ्यू का यूज हुआ है विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, और फ्यू का जो यूजेज यहाँ पर है वो क्या है, क्वांटिटी बताने के लिए, किसकी, पेन्स की, और किसके अंदर, नंबर के अंदर. क्लियर? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए नंबर सेकंड एग्जांपल, ही हैज लिटिल मनी. He has little money. Little is also here quantifier determiner. Money is here what? Uncountable noun. Uncountable noun. Clear? Money is here uncountable noun, and before it is used quantifier determiner that is little. Students, listen. Little, a little, the little are used with uncountable noun, with only uncountable noun to show the quantity
of that thing only in amount. So here also little is used with money uncountable noun to show the quantity of money only in amount. So that's clear. Quantified determiners are the words that are used before or not. So that is clear. Quantifiers words are used before a noun to show a noun's quantity in number or in amount. Okay students, what are these types of determiners, quantified determiners, such as many, much, some, few, a few, the few, little, a little, the little. Clear? Several, various, number of, a number of, the number of, etc. are the quantified determiners. Friends, to learn quantified determiners easily, we can divide it into three categories. What are they? Number first, quantifiers for only countable nouns. What are the quantifiers for only countable nouns? Few, a few, the few, several, various, many. These are the types of quantified determiners that are used only with countable nouns. Clear? Number second category, quantifiers for uncountable noun. Uncountable nouns. Friends, much, little, a little, the little, these are the quantifiers determiners that are used only with uncountable nouns. What are the uncountable nouns? You can say water, gold, silver. Understand? These are the uncountable nouns, and with them only we have to use little, a little, the little, and much, such type of determiners to show their quantity in amount, only in amount. Clear? Now number third, quantifiers for both countable and uncountable nouns. Friends, there are some quantified determiners that are used with both countable and uncountable nouns. Countable noun, what are the countable noun? The noun that can be काउंटेड, ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें. अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड. क्लियर? देखिए, अब बात ये कि ऐसे कौन कौन से डिटरमिनर्स, क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स हैं जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज किए जाते हैं. तो कुछ एक ऐसे हमारे क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स हैं जैसे सम, एनी, इनफ, एक्सेट्रा. ये जो डिटरमिनर्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे और भी डिटरमिनर्स जो आगे आएंगे जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे. तो ये ऐसे डिटरमिनर्स हैं
जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज किए जाएंगे। कहीं पर तो ये नंबर को बताने के लिए यूज किए जाएंगे और कहीं पर अमाउंट बताने के लिए यूज किए जाएंगे। Students, now we are going to learn about the first category in quantifiers determinants, that is quantifiers for only countable nouns. At first we will learn what are the quantifiers that are used only with countable nouns. As I have mentioned before, what are these? Listen. Few, a few, the few, several, various, many, a good many, a great many, many are, or n. Clear? Number of, a number of, a large number of, the number of, these all words are called quantifiers determinants. Clear? That are used only with countable nouns. Friends, at first we will learn about few, a few, the few. Clear? Why few, a few, the few are used in a sentence? तो फ्रेंड्स लिसन, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का जो यूज होता है एक सेंटेंस के अंदर वो काफ़ी छोटी संख्या को बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए? बहुत ही कम, बहुत ही छोटी संख्या को बताने के लिए फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का हमें यूज करना पड़ता है। क्लियर? लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या हैं फ्यू के अंदर, आ फ्यू के अंदर और द फ्यू के अंदर, ये अब हम जानने वाले हैं। तो देखें, फ्यू इज यूज्ड टू शो a very small number, a very small number in the meaning, not many, hardly any. क्लियर फ्रेंड्स? और जो फ्यू है इसका यूज किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर काफ़ी छोटी संख्या बताने के लिए, और मीनिंग क्या होता है? नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई होगा, मुश्किल से कुछ ही संख्या में कोई चीज़ होगी। क्लियर? इस अर्थ को बताने के लिए हमने फ्यू का यूज करना पड़ता है। और एक बात और इसके साथ हम ऐड करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो फ्यू को आ फ्यू और द फ्यू से क्या करता है? अलग करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस।
सबसे पहली बात तो बहुत छोटी संख्या, बहुत कम संख्या, न के बराबर, तो यहाँ पर जो सेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और बताया कि नेगेटिव सेंस के लिए हमने फ्यू का यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दी क्लास। क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। सपोज वी हैव 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। लेकिन 30 स्टूडेंट्स में से 5 या 10 स्टूडेंट्स ही क्या रहे, प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पर जो सेंस रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव, कि 30 स्टूडेंट्स थे, उनमें से कम 25-28 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी कम, न के बराबर 5 और 7 स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे सेंस के लिए 5 या 10 स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो फ्यू हैं वो क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट्स की नंबर को कम बता रहा है, काफ़ी छोटी संख्या को बता रहा है, जो क्या है, न के बराबर एक क्लास के अंदर। और जो सेंस निकलेगा कि 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5, 7 या 10 स्टूडेंट्स से क्या है, प्रेजेंट हैं, ये क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो इसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमने फ्यू का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर सेंस? अब बात करते हैं आगे जो अपना इसी के साथ डिटरमिनर्स हैं आ फ्यू, इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, आ फ्यू is also used, a few is also used to show a very small number, a very small number, but मोर देन फ्यू। लेकिन किससे ज़्यादा, फ्यू से ज़्यादा। फ्यू के अंदर जो संख्या होती है किसी थिंग की, उससे ज़्यादा को बताने के लिए थोड़ी, लेकिन फ्यू से ज़्यादा को बताने के लिए आ फ्यू का यूज़ किया जाता है। एंड वन थिंग इज ऑल्सो रिमेन विद इट, लिसन, इट इज यूज्ड टू शो पॉजिटिव सेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जो आ फ्यू है ये फ्यू की तरह ही आ वेरी स्मॉल नंबर को शो करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये फ्यू से अलग क्यों है? फ्यू का काफ़ी कम संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए यूज़ किया गया। इसका यूज़ भी काफ़ी कम संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए यूज़ किया गया, लेकिन फ्यू से थोड़ा सा ज़्यादा। जिस संख्या के लिए फ्यू का यूज हुआ उससे थोड़ी सी ज़्यादा संख्या के लिए किसका यूज किया जाएगा, आ फ्यू का यूज किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर विचार वो क्या है, इट इज यूज टू शो पॉजिटिव सेंस। जहाँ पर फ्यू क्या था, नेगेटिव, आ फ्यू क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, आ फ्यू स्टूडेंट्स आर absent इन दी क्लास। बिल्कुल पहले एग्जाम्पल से बिल्कुल ऑपोजिट। देखिए वहाँ पर तो क्या बताया कि कुछ ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या बताया, आ फ्यू स्टूडेंट्स की संख्या, और वो भी किसके अंदर, कम के अंदर। लेकिन देखें आर absent इन द क्लास, कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम है, लेकिन किसके अंदर, absent होने के अंदर, किसमें, एक क्लास के अंदर। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के जरिए हमने समझा, क्या समझा कि आ फ्यू का जो यूज यहाँ पर किया गया वो छोटी संख्या को तो बताने के लिए किया गया है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव सेंस में इस आ फ्यू का यूज इस सेंटेंस के अंदर किया गया है। कैसे, यहाँ पर सेंटेंस को देखकर हमें पता चला, जो कि यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है क्या, कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स
जो कि बहुत कम संख्या में क्या है, अब्सेंट हैं। अब ये बताओ कि क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी कम संख्या के अंदर 2 या 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएं, अब्सेंट हो जाए, तो ये सेंस क्या निकलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक तो 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 और 7 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कम थे लेकिन वो क्या थे, प्रेजेंट थे, तो सेंस क्या निकला, नेगेटिव। लेकिन 30 स्टूडेंट्स में से 2 और 3 स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ अब्सेंट हैं, बाकी 27 स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट हैं। तो कम संख्या अब्सेंट होने वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पर बताई गई, इसलिए हमने आ फ्यू का यूज किया। और है यहाँ पर क्या, सेंस पॉजिटिव कि ज़्यादा बच्चे क्या नहीं, अब्सेंट नहीं है। क्लियर, इसके लिए आ फ्यू का यूज किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लास्ट में किसके बारे में, द फ्यू के बारे में। किसके बारे में, द फ्यू के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसे फ्यू और आ फ्यू का यूज किया हमने किसको बताने के लिए, टू शो अ वेरी स्मॉल नंबर, ऐसे द फ्यू का भी यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो क्या, कि छोटी संख्या तो है लेकिन सारे के सारे, एंटायरली एक छोटी संख्या और सारी की सारी, ऐसा अगर विचार आता है, ऐसा अगर सेंस आता है, तो हमने फ्यू आ फ्यू का यूज न करके किसका यूज करना पड़ेगा, द फ्यू का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, द फ्यू इज यूज्ड टू शो a very small number but entirely। अब देखिए बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया, ये भी स्मॉल नंबर को बताने के लिए किया जाता है, किसी नाउन के, किसी थिंग के काफ़ी छोटी संख्या को बताने के लिए। संख्या वो क्या है, बहुत कम, बिल्कुल कम, इसको बताने के लिए किया जाता है। लेकिन संख्या में जो वो चीज़ें हैं वो सारी की सारी, ऐसा भाव आए कि छोटी संख्या में और सारे के सारे, एंटायरली, अगर ये विचार निकलता है तो हमने फ्यू आ फ्यू को छोड़कर द फ्यू का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखें, द फ्यू स्टूडेंट्स आर absent in the class। देखिए सपोज करें आप यहाँ पर कि क्लास के अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो नंबर है क्लास का वो सिर्फ 10 है। पहले ही क्लास के अंदर टोटल संख्या कितनी है, 10, और 10 के 10 स्टूडेंट्स क्या हो जाए, या तो प्रेजेंट हो जाए। 10 स्टूडेंट्स का नंबर मीन्स कि संख्या कितनी है, स्टूडेंट्स की सिर्फ 10 है, टोटल संख्या कितनी है, सिर्फ 10 है एक क्लास के अंदर, और वो सारे के सारे क्या हो जाए, या तो प्रेजेंट हो जाए या फिर क्या हो जाए, अब्सेंट। छोटी संख्या और उसके साथ सारे के सारे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो काफ़ी छोटी संख्या में एक क्लास के अंदर हैं, अंडरस्टैंड, 10, 8 लाइक दैट, और सारे के सारे वो क्या हो गए, अब्सेंट हो गए, तो उसके लिए द फ्यू का यूज करना पड़ेगा। तो यही तो बात थी कि बहुत छोटी संख्या, क्लियर, लेकिन सारे के सारे, ऐसा अगर विचार निकलता है तो हमने यहाँ पर द फ्यू का यूज करना पड़ेगा। देखिए, द फ्यू स्टूडेंट्स आर अब्सेंट इन द क्लास, की क्लास के अंदर पहले से ही जो टोटल संख्या वो काफ़ी कम है, और सारे के सारे जितने कम स्टूडेंट्स है उस क्लास के अंदर सारे के सारे क्या हो गए, अब्सेंट हो गए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, द फ्यू का यूज किया जाएगा। मुझे लगता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, सेवरल, वेरियस एंड मैनी। नाउ वी विल लर्न अबाउट सेवरल, वेरियस एंड मैनी। क्लियर? At first we are going to learn about several. Friends, several is used for
more than 3 things in number but all are alike। समझिए इस बात को कि सेवरल का यूज़ 3 से अधिक संख्या में जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, उनके लिए किया जाता है। 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकते, क्लियर। लेकिन किससे कम? मैनी से कम, अनसर्टेन नंबर से कम, क्लियर फ्रेंड्स। तो 3 से ज़्यादा अगर कोई वस्तु नंबर में है और वो जो थिंग्स हैं एक दूसरे से क्या नहीं है, अलग अलग नहीं है, सारी जो थिंग्स हैं 3 से ज़्यादा वो क्या है, एक जैसे हैं, अलाइक हैं, सेम हैं। ऐसे थिंग्स के लिए, ऐसे थिंग्स के नंबर को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? सेवरल का यूज़ किया जाएगा। और बता दूं आपको, सेवरल, वेरियस और जो मैनी यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। और नाउन भी क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्लियर। तो देखिए सेवरल को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेवरल people gathered in my birthday party, क्लियर। अब बहुत से लोग, पीपल, लोग, अब बहुत से लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो एक जैसे नज़र आते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्लियर। और इमोशंस के हिसाब से जो सारे ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या हैं? एक हैं। तो समझ में आया। अब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात की है, पीपल की बात की है, जो कैसे लगते हैं? एक जैसे नज़र आते हैं। और वो गैदर्ड हुए किसके अंदर? मेरे जन्मदिन के अंदर। अब जो लोग हैं वो 3 से ज़्यादा आगे तक एक संख्या में हो सकते हैं, लेकिन किससे कम? मैनी से कम, अनसर्टेन नंबर से कम, अनिश्चित संख्या से कम, लिमिटेड। लेकिन 3 से ज़्यादा जो लोग हैं उसके जन्मदिन के अंदर क्या हुए? इकट्ठे हुए, गैदर्ड हुए हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सेवरल का जो यूज किया गया है वो 3 से ज़्यादा के लिए और एक जैसे के लिए यूज किया गया है, क्लियर फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए what determiner we have to use? Several determiner we have to use, clear friends। Now number second, in that various friends, various is used for a large number of things but all are different, but all are different from one another, understand it। जो वेरियस है इसका यूज भी बहुत बड़ी संख्या के लिए किया जाता है, ज़्यादा संख्या के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि जो चीज़ें हैं बड़ी संख्या में तो हो, लेकिन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं होनी चाहिए या फिर सेम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। इसके लिए हमने वेरियस का यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंस, अब वेरियस को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेरियस बुक्स are published
various books are published in the world in a year, कि संसार के अंदर एक साल के अंदर अलग अलग बहुत सी जो बुक्स हैं वो पब्लिश की जाती है, उनको पब्लिश किया जाता है। क्लियर। अब संसार के अंदर कितने राइटर्स होंगे और वो कितनी बुक्स को लिखते होंगे और वो सारी बुक्स क्या होंगी, अलग अलग। ऐसे ही किसी दूसरे सेंटेंस में विचार इस तरीके का आता है तो हमने किसका यूज करना पड़ेगा, वेरियस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या बताया हमने, वेरियस बुक्स आर पब्लिश, कि अलग अलग जो बुक्स हैं जो एक जैसी नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, अलग अलग थीम पर, अलग अलग थॉट पर, अंडरस्टैंड, अलग अलग प्लॉट पर। क्लियर। तो अलग अलग बुक्स अलग अलग थीम पर पब्लिश की जाती हैं और किसके अंदर, संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर और एक साल के अंदर। क्लियर सेंस। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमने वेरियस का यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, बात करते हैं मैनी के बारे में। व्हाई मैनी इज यूज। स्टूडेंट्स, मैनी इज यूज्ड टू शो a large number of things that is uncertain. Many is used to show a large number of things that is uncertain. It means many is used to show a large number of things. It means to show uncertain number of things. It is hard to count. The number of things hard to count. In the same meaning we have to use many. ऐसी थिंग्स की संख्या जो काफ़ी बड़ी है, और कैसी संख्या है, नंबर है, अनसर्टेन नंबर। और अनसर्टेन नंबर, और अनसर्टेन नंबर से मतलब क्या है, ऐसा नंबर जिसको गिनना क्या हो, लगभग मुश्किल हो, इम्पॉसिबल सा नज़र आए। ऐसे नंबर्स में अगर कोई थिंग्स होती हैं तो उसके लिए मैनी का यूज किया जाता है। क्लियर। नाउ वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। मैनी people in the world believe that God is everywhere. अब देखिए स्टूडेंट्स, संसार के अंदर कितने लोग होंगे, इट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो ये विश्वास रखते हैं क्या, कि भगवान सब जगह होता है। अब संसार के अंदर भगवान को मानने वाले और भगवान के इस विचार को कि भगवान सब जगह होता है, कितने लोग होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, और जिनकी संख्या कर पाना लगभग क्या लगता है, अनसर्टेन लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेन नंबर के लिए, अनसर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए जिसको काउंट करना लगभग क्या हो, मुश्किल सा हो, इसी के लिए हमने किसका यूज़ करना पड़ता है, मैनी का यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया सेवरल, वेरियस एंड मैनी, और आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस, अब जो रिमेन्ड क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे उनका हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे किसको, नंबर ऑफ a number of a large number of
Friends, a large number of are used before a plural countable noun to show a large number of things like many. देखिए स्टूडेंट्स, मैनी की तरह ही हम नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैनी में और इसमें क्या डिफरेंस है कि मैनी के लिए तो बहुत बड़ी संख्या जो कि अनसर्टेन है, बिल्कुल इनका भी यूज़ इसी विचार के साथ किया जा सकता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैनी के अंदर तो वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में थी, लेकिन सारी की सारी क्या थी? एक जैसी। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के अंदर जो चीज़ें होंगी बहुत बड़ी संख्या में, किसकी तरह? मैनी की तरह। वो हो सकता है एक जैसी भी हो सकता है वो क्या हो? एक दूसरे से अलग अलग हो। क्लियर? लेकिन कैसे हो? अनसर्टेन नंबर में हो, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स में हो। तो हमने किसका यूज़ करना पड़ेगा? नंबर ऑफ, और अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर सेंस? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। A large number of people gathered in the World Book Fair at प्रगति मैदान। क्लियर? A large number of people gathered in the World Book Fair at प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। यू कैन सी न्यू दिल्ली के अंदर जो प्रगति मैदान है और उसके अंदर वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया, और उसी के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर, अनसर्टेन नंबर के अंदर जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे, गैदर्ड हुए थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को बताने के लिए हम नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस। अब आज का जो लास्ट क्वांटिफायर डिटरमिनर है जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है वो है मैनी आ और मैनी एन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किस मीनिंग के लिए मैनी आ और मैनी एन का यूज किया जाता है। इन विच मीनिंग वी हैव टू यूज मैनी आ और मैनी एन। फ्रेंड्स लिसन, it is used to show many. It is used to show many in one category. It is used to show many in one category only with singular countable noun। देखिए सेंस, मैनी आ और मैनी एन का यूज किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर बहुत से
को बताने के लिए, लेकिन किसके अंदर, एक कैटेगरी के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर बहुत से, इस सेंस को बताने के लिए हमने मैनी आ या मैनी एन का यूज़ करना पड़ेगा, और सिर्फ किसके साथ, देखें, ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो इट मीन्स जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ मैनी आ या मैनी एन के साथ किया जाए तो वो एक स्पेशल और स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, बहुत से कैटेगरी के अंदर बहुत हैं, और उनमें से भी बहुत से इस भाव को, इस सेंस को बताने के लिए यूज किया जाएगा। अब सेंटेंस देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल, मैनी एन एनिमल, क्लियर, ये एन आएगा या आ आएगा, ये डिपेंड करता है उस नाउन के साउंड के ऊपर, जो हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साउंड के ऊपर। अंडरस्टैंड, मैनी एन एनिमल इज ट्रीटेड बैडली। कैटेगरी है, क्लास है किसकी, एनिमल की, या आप कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से बहुत से एनिमल्स बहुत ज़्यादा, और उनमें भी, उनके अंदर भी बहुत से जो एनिमल हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, और किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, क्लियर, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। जो पशु हैं उनमें से बहुत से पशुओं के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है, बैडली ट्रीटेड और बैडली मैनर यूज किया जाता है, क्लियर। इस भाव को बताने के लिए हमने यहाँ पर मैनी एन का यूज किया, किसके साथ, एनिमल के साथ। एनिमल का जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा है, और उस कैटेगरी में भी बहुत से जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे सेंस के लिए हमने किसका यूज करना पड़ेगा, या तो मैनी आ या मैनी एन। तो आज हमने पढ़ा क्या, क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स फॉर ओनली काउंटेबल नाउन्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और काफ़ी छोटी संख्या बताने के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, सेवरल, वेरियस और मैनी, जो कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स के लिए यूज की जाती हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज की जाती। इसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, जो बहुत बड़ी संख्या के लिए यूज किए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, क्लियर सेंस। और लास्ट में हमने पढ़ा मैनी या मैनी एन, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनका तो यूज हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ बड़ी संख्या को बताने के लिए, लेकिन मैनी आ और मैनी एन का यूज किया जाता है किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और किसको बताने के लिए, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर बहुत से ऐसे विचार को बताने के लिए मैनी आ या मैनी एन का यूज किया जाता है, और किसके साथ, ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज का जो ये वीडियो हमारा क्वांटिफायर्स फॉर काउंटेबल नाउन्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर दोबारा मिलते एक नई वीडियो के साथ, और टॉपिक अभी यही रहेगा क्या, डिटरमिनर्स, और अभी हमने इसके सेकेंड जो कैटेगरी है कौन सी, क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स विद अनकाउंटेबल नाउन, और थर्ड कैटेगरी कौन सी, क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको अभी पढ़ना बाकी है। तो उनके वीडियो के साथ हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।